Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 16 for that topic human reproduction. Now, as I told you, we have drawn the figures. Keep watching all the videos. You will get the continuation and in the link also. Okay. तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ये दोनों भी फिगर्स इंपॉर्टेंट है. विद हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न मेल सेक्स ऑर्गन्स वेरी प्रॉपरली. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये फिगर मैंने दो निकाले हैं, एक वेंट्रल व्यू है, एक लैटरल व्यू है. नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट एंड इन ब्रीफ और व्हाट इज दैट इन रैपिड मैनर summary of all that part which we have studied up till now in the last 13-14 lectures. So male sex organ important है testes. That we know that testes are important primary male sex organs. Basically they are produced in the abdomen in the form of pair, but just before the birth, remember important point, just before the birth, that testes which were produced earlier in abdomen are pushed outside the abdomen through one canal known as inguinal canal, and then they are placed permanently in a pouch outside the abdomen below the pelvic cavity in between the two thighs. And what is the name of that pouch? That is called as the scrotum. उसे कहते हैं scrotum या scrotal sac. दो टेस्टिस वहां पे scrotal sac में भेजे दिए जाते हैं. ओके, देन दैट scrotal sac क्यों वहां पे रखा है उसको टेस्टिस को? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट फॉर्मेशन स्पर्म्स requires temperature 2 to 2.5 degrees Celsius less than that of body temperature. Body temperature से 2 to 2.5 degrees Celsius temperature उसको कम लगता है. That's why scrotum is kept out, that testes are kept outside the body, outside the abdomen in that scrotum. और ये scrotal skin भी बहुत sensitive है. Whenever the high temperature is there outside in the environment, the scrotal skin becomes loose and that gets somewhat expanded, hangs down, so that testes will be pushed away from the body as much as possible. ज्यादा टेम्परेचर है तो ये स्क्रोटम थोड़ा लूज हो जाता है और टेस्टिस जो है वो दूर रखे जाते हैं. और अगर टेम्परेचर कम है, सीवियर कोल्ड है विंटर में, then that scrotum skin contracts and then that scrotum skin will get pushed towards the abdomen, क्योंकि that testes will be pushed towards the abdomen for getting warmer. ये भी बात ध्यान में रखो. और attachment of testes in the that scrotum is done with the muscular thread known as what? Gubernaculum. नाम ध्यान में रखो. तो testes के अंदर क्या होता है दोस्तों? Inside the testes there are present large number of the seminiferous tubules, working units. Inside the seminiferous tubules a process occurs known as what? Spermatogenesis, and by that spermatogenesis that sperms are produced. Also seminiferous tubules के बीच में जो gap है, that is filled by the interstitial cells, loosely arranged cells, उनके नाम है Leydig cells, and they produce the male sex hormone testosterone or androgens that can help in the process of male reproductive system. Okay, अब तीसरा पार्ट जो है, ये स्पर्म्स यहाँ पे तैयार तो किए जाते हैं, पर बाहर जाने के लिए जो कैनल है वो कौन सा है? From seminiferous tubule that sperms are carried into the reti testes present along the wall of that particular testes. फिर रेटी टेस्टिस से माइन्यूट डक्ट निकलते हैं, वासा इफ्रेंशिया, एंड दे विल ओपन इनटू दिस एपिडाइडेमिस. ये एपिडाइडेमिस जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है आउटसाइड द टेस्टिस, हाईली टॉर्टियस डक्ट देयर, स्पाइरली ऐसे डक्ट है वो, और वो 6 मीटर लॉन्ग है कम से कम. उसमें स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, राइपन किया जाता है. ये एपिडाइडेमिस के भी मैंने 3 पार्ट बताए थे. ऊपर वाला जो हेड है उसे कहते हैं कैप्यूट एपिडाइडेमिस, मिडल जो बॉडी है उसे कहते हैं कॉर्पस एपिडाइडेमिस, और जो लोअर मोस्ट एंड है उसे कहते हैं कॉडा एपिडाइडेमिस. एंड फ्रॉम दैट कॉडा एपिडाइडेमिस अनदर लॉन्ग डक्ट इज अराइजिंग, एंड दैट डक्ट इज नोन एज व्हाट? They are called as vas deferens.
दोनों भी टेस्टिस से निकलते हैं। तो ये टेस्टिस से आएगा एक वास डिफरेंस, ये टेस्टिस से आएगा दूसरा वास डिफरेंस। टू वासा डिफरेंशिया डक्ट्स आर देयर। ओके, लैटरल व्यू में एक ही दिखेगी आपको। ये वास डिफरेंस कैरी करती है स्पर्म्स को, एंड देन दैट गोज इनटू द एब्डोमेन थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल along with that spermatic cord. Then it runs towards the urinary bladder, takes a loop around the urinary bladder. ये urinary bladder के ऊपर ऐसा एक loop लेती है, and then it opens into the urethra of that particular urinary bladder. ऐसा एक loop पूरा लेके ये यहाँ पे urethra में open होती है, particularly from ventral surface. ये देखो ये urethra में open हो रही है. But before opening into the urethra, it is joined by a duct from seminal vesicle. ये seminal vesicle actually दो है, lateral view में एक बताया गया है। ये देखो ये दो रेड इंक से बताया मैंने, ये दो seminal vesicle. They are giving a duct that is joining with the vas difference. And दोनों मिलके फिर जो duct बनती है उसे कहते हैं ejaculatory duct. Ejaculatory duct नाम किसको देना है? Particularly not this. Ejaculatory duct is a duct that is common for what? For what do you say that? Seminal vesicle and that vas difference. ये ejaculatory duct दोनों साइड से ओपन होती है यूरेथ्रा में, one from this side, one from this side. Then from that particular seminal vesicle a secretion is produced known as seminal fluid, जिसमें हमने देखा था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक तो उसमें क्या क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, नो डाउट। इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक फ्रक्टोज, जो कि नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स के लिए जरूरी है। उसमें कैल्शियम है, उसमें फाइब्रिनोजिन है फॉर क्लॉटिंग ऑफ द सीमेन देयर आफ्टर द इजैकुलेशन, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है फॉर स्टिमुलेटिंग द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द वजाइनल ट्रैक आफ्टर द कोइटस। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें है सेमाइनल प्लाज्मा में, सेमाइनल फ्लूइड में। ये सेमाइनल फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, it gives mobility to sperms. Okay, then just below from where the urethra arises, urethra जहां पे arise होती है या urinary bladder के बाहर, उसके encircling around that there is another accessory gland known as prostate gland. ये prostate gland बहुत ही important है, that encircles it, urethra को पूरा encircle, ये urethra तो उसको encircle कर देता है ऐसा. Okay, and then give minute ducts there which open into the urethra, that is called prostatic urethra, और उसमें वो अपना सिक्रीशन डाल देता है। हमने बताया था सीमेन का कंपोजिशन, सीमेन जो पूरा बनता है एक्सेसरी डक्ट के सिक्रीशन से और स्पर्म से, दैट पर्टिकुलर हैज गॉट ऑलमोस्ट 60% पार्ट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, 30% पोर्शन, 60 to 70% पार्ट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड एंड ऑलमोस्ट 30% पोर्शन क्या है उसका? प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। That is alkaline and that is somewhat viscous. Okay, तो ये alkaline nature important है किसके लिए? For neutralizing the acidity of the that urethra of the that penis of the man as well as acidity of the vaginal fluid. उसके जस्ट बाहर और एक ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड। इसका अदर नेम आपको मालूम होना चाहिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बल्बो यूरेथ्रस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बल्बो यूरेथ्रस ग्लैंड जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग अल्कलाइन फ्लूइड देयर, ट्रांसपेरेंट नो डाउट, जो इस और ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है वो फ्लूइड, जो इस यूरेथ्रा में पहले अगर जो यूरिन पास हुआ है उस यूरिन को जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, एंड आल्सो दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द वजाइनल फ्लूइड। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट सिक्रीशन। ये पूरा मिलके सीमेन बनाते हैं। यूरेथ्रा जो पास होती है यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, उसके 3 पार्ट्स मैंने बताए थे। इट इज हैविंग दैट 3 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जस्ट बिफोर द पेनिस, एंड देन पेनाइल यूरेथ्रा और स्पॉन्जाइल यूरेथ्रा। ओके, ये यूरेथ्रा जो है उसे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट? उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहेंगे? Because that carries both, it carries both their urine in the routine and genital secretions, that semen, at the time of coitus. तो ये जो है ये दोनों भी कैरी करता है सेक्सुअल प्रोसेस के टाइम
सीमेन कैरी करता है, और जब नॉर्मल प्रोसेस है, सेक्सुअल नहीं है, तो उस टाइम यूरिन कैरी करता है. ओके, इसलिए उसे नाम दे रहे यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ओके, तो एमसीक्यू आ सकता है. यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज प्रेजेंट इन नंबर ए मैन, नंबर बी वुमन, नंबर सी बोथ ए एंड बी, नंबर डी नन ऑफ दिस. तो मैन में है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मैन में है. ओके, देन द अनदर पार्ट इज देयर. तो हमने ये पूरा पैसेज देख लिया. पैसेज कैसा कैसा है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटी टेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया, ये टेस्टिस के अंदर है. वासा डिफरेंशिया टू इपिडाइडेमिस टू वास डिफरेंस टू इजैक्युलेटरी डक्ट टू यूरेथ्रा देन आउटसाइड द बॉडी. ये यूरेथ्रल मीटस नाम का ओपनिंग है पेनिस के टिप पे, उससे वो बाहर फेंका जाता है. देन अनदर इज दैट मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज पेनिस. ये पेनिस जो है पर्टिकुलरली, अदरवाइज इट इज सॉफ्ट विदाउट एनी बोन, सॉफ्ट मस्कुलर टिश्यू है. उसमें 3 इरेक्टाइल मसल्स के सेट है, उसके नाम हमने दिए थे. दैट दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो बीच वाला है, एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो बाहर के 2 है. तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो एनलार्ज हो जाता है एट द टिप, एंड दैट फॉर्म्स दैट enlarged portion of the penis called as what? Glans penis. ये ग्लांस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है. ये जो पेनिस बल्ब कहते हैं या ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दैट कॉल्ड एज प्रीप्यूस और फोरस्किन. वेरी क्लियर. So penis has got this is very sensitive, remember. Under the sexual excitement given by that hormone testosterone, that erectile muscles which are having that particular sinuses there, they start to contract, and then at that time that otherwise very smooth, very much that what is that pendulous or limp type of the penis becomes hard, erect and large. टेम्पररी होता है वो इरेक्शन, बट वंस द क्वाइटस प्रोसेस इज ओवर, वो इरेक्शन फिर चला जाएगा. ओके, और फिर अगेन इट विल बी सस्पेंडेड लाइक दिस. ओके, तो ये पेनिस जो है, इरेक्टेड पेनिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंसर्टिंग इनटू द vaginal canal of the woman, and at the peak point of that coitus process, ejaculation of the semen will be done from that particular penis. Okay, तो ये पार्ट अच्छी तरह से जान लो. सेमाइनल फ्लूइड देखा हमने, प्रोस्टेट ग्लैंड देखी, कॉपर्स ग्लैंड देखी, दिस पर्टिकुलर पेनिस, एवरीथिंग इज देयर वेरी क्लियर. सीमेन का कॉम्पोजिशन मैंने बताया आपको, एवरीथिंग इज देयर. ओके, सो लर्न इट वेरी प्रॉपरली. ये तो हरीडली मैंने समराइज किया है दोस्तों. अगर आपको यह हर एक पार्ट की जानकारी डिटेल में लेनी है तो डेफिनेटली अर्लियर वीडियोस वॉच करो. फ्रॉम लेक्चर नंबर 2 अप टू लेक्चर नंबर 14 हर एक पार्ट को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है. सो डू वॉच ऑल दैट वीडियोस, एंड आफ्टर दैट डू लर्न दिस in very quick session like this. I hope you have liked this. So do like, share and subscribe to my channel. And to learn the MCQs, don't forget to subscribe my Kateswar Biology Shorts channel. You will get benefited in all the ways. Thanks a lot. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me.